Even when you feel low, you can still go. Wakey, Even when you feel slow, you sleepyhead. can still go. Good Even when morning, there's no Adu. hope, you can still go. I never Good answer morning. to no, man, I still go. Utho. Go, Utho. go, go. Good morning. Go, go. Good morning. Hey, sleepyhead. Utho, utho. School जाना नहीं है क्या? Hustle every single day. I'll be Utho. making moves till I'm buried in my grave. Good To morning. the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my Good way, morning. or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Utho. Just gotta put the School is situation good. going obtain. School is good. School is good. Ingredient is belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Arush, go, wishing you all the very best for your new class. Are you excited? जल्दी जल्दी खा लो चलो ठीक है All the best. High five. I love you. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, low, you can still go. Go, go slow, you can still go. Go, there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So look who's here. Arish is back from his school. So, Mr. Shukla, how was your experience today? First day of school. It's good? क्या करा स्कूल में बताओ? I play with my friends. On day one you made friends. That's great. And I did 2 times recess and 2 times lunch. 2 time recess, 2 time lunch, or one recess, one snack break, or one lunch break? That and no play recess. So how many times you went outside today? 2 times only. 2 times. And how's your teacher? It was good. Good. अच्छा लगा आपको टीचर? My teacher's name is Miss Samson. अच्छा. And आप पढ़ाई क्या करी? nothing, just fun. Nothing, just fun.
आज फर्स्ट डे था ना आरुष का, तो फन किया आरुष ने। Tomorrow Friday कैसे हो गया? Tomorrow is Friday Why? because today is Thursday. Then today is Friday and tomorrow is Saturday. Okay, this is the right thing. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कनाडा में, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, कनाडा में न्यू सेशन बिगिन हो चुके हैं 1 सितंबर से, और सब बच्चे यहाँ पे स्कूल जाने लगे हैं, न्यू क्लास में जाने लगे हैं। वैसे ही हमारा आरुष भी स्कूल स्टार्ट कर चुका है और ही इज़ इन ग्रेड 1 नाउ, और वो भी गया हुआ है स्कूल। उसको आई गेस स्कूल जाते हुए 3-4 डेज हो चुके हैं, अब वो बस से जाने लगा है। सो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छा मौका है, मैं अकेली बैठी हूँ तो आज इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए मेरा एक्सपीरियंस कि आरुष का स्कूल ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसा रहा, हम लोगों से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या क्या हुआ। सो चलिए, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आरुष का स्कूल ट्रांसफ़र प्रोसेस फ्रॉम एडमिंटन स्कूल टू कैलगरी स्कूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कूल ट्रांसफ़र, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एडमिंटन से मूव हुए हैं कैलगरी, और आरुष ने वहाँ पे अपना किंडरगार्टन किया था। तो जब हम यहाँ मूव हुए, तो हमने, जैसे कि हर यहाँ पे हर सिटी का अपना एक बोर्ड होता है। जैसे एडमिंटन था तो एडमिंटन पब्लिक स्कूल बोर्ड, EPS भी बोलते हैं। वैसे ही कैलगरी का है कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CBE। तो जब आप सपोज जैसे हम लोग एडमिंटन से कैलगरी आए, आरुष कैलगरी में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने माई CBE की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर हमने जब आरुष को रजिस्टर किया, तो वो पूरा जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म जैसा पूरा खुलता है। तो उसमें बच्चे का नाम, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस वगैरह, वो सब डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ती है। तो और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए, उसमें जनरल जो डिटेल्स होती हैं बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, वो सब तो फॉर्म जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बाकी उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों से उन्होंने मांगे थे, हम अखिल ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। आरुष का बर्थ सर्टिफिकेट, आरुष का पासपोर्ट एंड एड्रेस प्रूफ, एंड उसके अलावा हमारा कनाडा का आरुष का स्टेटस, कि वो कैनेडियन सिटीज़न है कि PR होल्डर है, या वर्क परमिट, मतलब जो होता है ना डिपेंडेंट वीज़ा वाले, जो वर्क परमिट पे आते हैं, जैसे हम लोग आए थे स्टार्टिंग में, वो है। तो वो स्टेटस, जैसे हम लोग PR है तो हमने हमारा PR कार्ड का डिटेल्स आरुष का वो हमने अपलोड कर दिया था। उसके अलावा उन लोगों ने और कोई हमसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। एंड बाकी उसकी रही प्रीवियस एजुकेशन के लिए, उन लोगों ने जैसे कि बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है, प्रीवियसली अगर वो पढ़ रहा था तो कहाँ पढ़ के आया है, तो हमने हमारी सिटी डाल दी, स्कूल की डिटेल्स डाल दी, एंड उसकी जो क्लासरूम टीचर थी, जो मेन टीचर थी, उनका नाम डाल दिया। तो ना ही उन लोगों ने हमसे आरुष की कोई मार्कशीट मांगी, ना ही उन्होंने, मीन्स हमने अपलोड नहीं करी, ना ही हमने कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपलोड किया। इवन दो स्कूल से भी हमको एडमिंटन से उन्होंने कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था। उन्होंने बस मुझे एक प्रिंट दे दिया था कि आरुष का मार्कशीट का, वो तो वैसे भी ऑनलाइन थी, जो वहाँ का पोर्टल था, मैं वहाँ से भी निकाल सकती थी। बाकी उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम आपको प्रिंट भी दे देते हैं, तो वो देता, दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। बाकी इसके बाद ये जब अपलोडिंग एंड ऑल जब हमारी डन हो गई, उसके बाद हमें कुछ एक दिन बाद हमें कैलगरी बोर्ड से एक वेलकम मेल आ गया था, कैलगरी वेलकम टू कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एंड उसमें ये था कि नेक्स्ट जो भी है आपको क्या करना है, तो उसके लिए द टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। बस उसके बाद फिर हमें एक दिन मेल आया कि आरुष को यहाँ पर जो इनका कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो एक सेंटर है, तो उसको एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे जाके आरुष का असेसमेंट होगा, एंड दैट असेसमेंट विल टेक ऑलमोस्ट 3 hours ऐसे करके उसमें एक मेल था। और वो मैंडेटरी होता है फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 तक, किंडरगार्टन के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन के लिए एलिजिबल है, अगर वो किंडरगार्टन स्टार्ट कर रहा है तो उनको नहीं जाना होता है, बट ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स टू टिल 12th सब लोगों को मैंडेटरी है। बिकॉज एडमिंटन में जहाँ तक मुझे पता है ये नहीं था। अगर आप आते हैं और बच्चा एडमिशन ले रहा है आपका एडमिंटन में, तो अगर सीट अवेलेबल है तो आप मतलब मिल ही जाती है, अवेलेबल तो क्या मिल ही जाती है, तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। they don't go through with the assessment and all, because ये मैं इसलिए गारंटी से श्योरिटी से बोल रही हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली एक फैमिली इंडिया से आई थी एडमिंटन में, तो उनकी डॉटर आई गेस 6th grade में यहाँ से स्टार्ट करना था उसको,
तो उन लोगों को कहीं पर भी असेसमेंट वगैरह इसके लिए नहीं बुलाया था, बिकॉज मुझे श्योर नहीं था पहले, बिकॉज आरुष ने किंडरगार्टन स्टार्ट किया था तो मुझे लगा माइट भी वहाँ भी होता हो, क्योंकि कैलगरी में भी अगर कोई किंडरगार्टन आके कर रहा है कहीं और प्रोविंस से या कहीं और कंट्री से तो उसको ये असेसमेंट नहीं होता है, ग्रेड 1 से होता है। तो मैंने कहा उनसे कंफर्म किया था कि आप लोग ऐसा कुछ हुआ, तो उन्होंने लगा कि नहीं, हम तो गए स्कूल में और बोला ये हमारा एड्रेस है, तो उन्होंने हमको बोल दिया कि ओके उसका एडमिशन हो गया, मतलब जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगी थी वो दे दिया और एडमिशन डन, नो असेसमेंट नथिंग। सो आई गेस एडमिंटन में ऐसा नहीं है। बट हाँ, कैलगरी में अगर आप मूव हो रहे हैं लाइक कनाडा से ही बट दूसरी सिटी से, दूसरी प्रोविंस से या ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री से, तो अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 और या उससे ऊपर है तो उसको ये असेसमेंट से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो हमें उस असेसमेंट में हमें लग रहा था पता नहीं क्या कराएंगे छोटे बच्चे से, मतलब लाइक 3 घंटा वो भी, तो हमें लगा शायद ऐसी बात क्या करेंगे, क्या है पता नहीं। और उसमें फिर जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर जाकर पहले तो उन लोगों ने जाके एक टीचर्स आ रही थी, तो कोई आके चेक कर रहा था कि अच्छा नाम ये है बच्चे का, किस स्कूल में रजिस्ट्रेशन किया है, वो सब डिटेल कंफर्म करी थी। फिर एक फिर टीचर का ग्रुप आया, तो उसमें शायद वो लोग, क्योंकि वहाँ पर ना जैसे एजुकेशन सेंटर के तो स्टाफ था ही, उसके अलावा जिस भी स्कूल के बच्चों का मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उस स्कूल से शायद स्टाफ भी आया था। तो वो टीचर्स अपने अपने स्कूल के जो रजिस्टर्ड बच्चे थे उनके मतलब डिटेल्स लेके आ रही थी और ग्रुप बना के उनको लेके जा रही थी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब हमने वो माई CBE में अपलोड किया था तो उसमें लैंग्वेज भी आया था, लाइक घर पे एक ऑप्शन आया था कि घर पे मतलब फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों की कौन सी है, लाइक हिंदी या इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, मीन्स इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली हिंदी चूज़ किया था बिकॉज घर पे हम हिंदी बोलते हैं। तो शायद ये असेसमेंट, जहाँ तक मैं समझी हूँ, ये असेसमेंट जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज दूसरी है, लाइक नेटिव लैंग्वेज दूसरी है, नॉट ओनली हिंदी या उर्दू, लाइक स्पेनिश और मतलब जो भी अदर चाइनीज़, जो भी अदर लैंग्वेजेस होती हैं जो लोग बोलते हैं, तो वो शायद उन लोगों के लिए था। क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने देखा था मुझे ऐसा कोई कनेडियन बच्चा नहीं दिख रहा था, सब अदर थे, जैसे यूक्रेन से, पाकिस्तान, चाइनीज़, स्पेनिश, ये सब लोग मुझे दिख रहे थे। तो शायद ये रीज़न रहा होगा, बिकॉज बाद में जैसा कि मैं आपको बताया ना कि जब टीचर लेने आई तो वो बच्चों के ग्रुप बना के ले गई स्कूल की टीचर्स, और उसके बाद वहाँ पर वो लाइक 3 आवर्स तो नहीं, 3.5 आवर्स ही हो गया था हमारा। और बाद में फिर उसके बाद 3-3.5 घंटे के बाद आरुष आया और बस सब बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गए। और फिर उनका रिजल्ट आया, फिर बाद में टीचर आई, उनके स्कूल की टीचर आई और उन्होंने पूरा मतलब वो लोग 1 to 5 तक बच्चे को रेटिंग देते हैं कि क्या बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमें लगा था सिर्फ बात करेंगे, बट वहाँ पर तो लाइक पूरा एक एग्जाम इंटरव्यू जैसा हो गया उन लोगों का। बात तो करी इंटरव्यू जैसे, मतलब उसमें उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट ले लिया, इंग्लिश का, कि लाइक कोई पिक्चर देख के कि बच्चा सेंटेंस लिख दे या वर्ड लिख दे कि व्हाट इज दिस, कैट, एप्पल, बॉल, और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मिसिंग नंबर्स, मिसिंग लेटर्स, वो सब, कलर, तो ये सब उसमें था पूरा, इंग्लिश और मैथ्स मिला के। तो मतलब मैं तो सरप्राइज हो गई बिकॉज मैंने आरुष को कुछ भी नहीं कराया था सीरियसली, बट टच वुड उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, नॉट ओनली रिटर्न लाइक उस एग्जाम में, लाइक कम्युनिकेशन है, बिकॉज जैसे ही टीचर आई उनका फर्स्ट वर्ड यही था, लाइक दिस बॉय कम्युनिकेशन इज एक्सीलेंट। बिकॉज हमारा पर्पस, उन्होंने ये बोला कि हमारा पर्पस इस असेसमेंट का ये नहीं होता लाइक कि बच्चे को मैथमेटिक्स कैसा है, बच्चे का इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज कैसा है, हमारा मेन पर्पस ये होता है कम्युनिकेशन। तब मुझे लगा था कि शायद यही रीज़न रहा होगा, इसलिए कोई कनेडियन नहीं है, मतलब जो भी इंग्लिश स्पीकर है, जिनकी नेटिव इंग्लिश है, उसके अलावा दूसरे लोग हैं। सो दैट वाज द रीज़न। तो उनका मेन पर्पस असेसमेंट का ये था कि वो बच्चे की कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज देखना चाह रहे थे कि हाउ वेल किड कैन स्पीक इंग्लिश, और वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर फिर वो बच्चे की उसी पूरी रिपोर्ट को जनरेट करके वो उनके डेजिग्नेटेड स्कूल जाती हैं वो रिपोर्ट्स, तो उसमें बच्चों को जिस चीज़ पे फोकस करवाना था, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे जिनको इंग्लिश ही नहीं आती थी, वो अपनी दूसरी, जैसे चाइनीज़ बोल रहे हैं या स्पेनिश बोल रहे हैं, यूक्रेन जहाँ से भी आए वो अपनी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक पाकिस्तान से बच्चा आया हुआ था, उसको उर्दू
ही आती थी, इंग्लिश का ई तक नहीं आता था उसको। उसकी फैमिली तो ट्रांसलेटर लेकर आई थी, जो वो लोग उनको भी नहीं आती थी, तो वो ऐसा लाइक उसकी मॉम जो आई थी साथ में, वो ट्रांसलेटर में साथ लेकर आई थी, तो वो उनको अपना उर्दू में बोल रही थी, फिर वो उनको ट्रांसलेट करी थी, तो ऐसी भी हालत थी। तो वो लोग वही चीज़ फोकस कर रहे थे, तो उन लोगों ने था कि हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद वो पूरी ओवरऑल उनकी रिपोर्ट बनती है कि हाँ कि बच्चे को लैंग्वेज का इशू है, उसे कम्युनिकेशन में मोर फोकस करना है। तो फिर वहाँ जो स्कूल के टीचर होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को टीच करते हैं, एजुकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा ओवरऑल लाइक सिर्फ थियोरटिकली नहीं, आपका प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके ऊपर पूरा बच्चों का एजुकेशन दी जाती है, फिजिकल मेंटल सब कुछ, और प्रैक्टिकल हर चीज़ के ऊपर। तो बस उसके बाद आरुष की आई, तो मैडम ने बोला कि एंड आई मस्ट से दिस बॉय हैज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, वेरी गुड नॉलेज, ही स्पीक्स सो वेल। और इवन दो मैथमेटिक्स में भी उसने एडिशन तो बहुत ही एकदम परफेक्ट किया था, सब्ट्रैक्शन में उसको थोड़ी गड़बड़ होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ की थी, बट हाँ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग था। बट हाँ बाकी इंग्लिश में भी उसने काफ़ी अच्छे से, उसको ABCD भी पूरा था, मिसिंग लेटर्स, मिसिंग नंबर्स, वो सब उसने कर दिया था। तो ओवरऑल आरुष की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, एंड सब ने अच्छा बोला उसको, तो हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, चलो ठीक है। 3.5 घंटे लगे बट हो गए। तो ये असेसमेंट से जाना पड़ेगा अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 या उससे ऊपर क्लास में यहाँ पे आ रहा है। सो दैट्स इट। और उसके बाद फिर जब उसके बाद तो कुछ करने को था ही नहीं, बस उसके बाद फिर जब स्कूल खुलने का टाइम आया, यहाँ स्कूल जैसे 1 सितंबर से स्टार्ट होते हैं, तो उसके 3-4 दिन पहले ऑफिस खुल जाते हैं, तो बस फिर वहाँ से इसकी क्लास टीचर का मेल आ गया। एंड बट अभी आरुष के संग क्या हुआ है कि हमारे जो हमारी जो कम्युनिटी का जो स्कूल है, यहाँ पे क्या है, बहुत बच्चे, मतलब नॉट ओनली दिस कम्युनिटी, इसके आसपास की भी कुछ कम्युनिटीज है जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो वो इसी में आते हैं। तो अभी आरुष का जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो उस स्कूल में नहीं जा रहा, इस स्कूल के डेजिग्नेटेड ओवरफ्लो स्कूल में जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं उनके डेजिग्नेटेड ओवरफ्लो स्कूल्स भी होते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप जैसे हमने लेट रजिस्ट्रेशन किया, बिकॉज हमें तो पता नहीं था कि हम कैलगरी में हो जाएंगे, हमने तो उसका एडमिंटन में रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि यहाँ पे हर साल स्कूल में रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। जैसे इंडिया में होता है ना, एक स्कूल में हम चले गए, हम वहाँ पे इनरोल हो गए, तो उसमें चल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप सेम स्कूल भी कंटिन्यू करेंगे ऑब्वियसली, तो बट एवरी ईयर यू हैव टू रजिस्टर योर चाइल्ड। तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन आता है और एक नॉर्मल जो चल रहे होते हैं उसका आता है। तो वो तो जब आप बच्चा स्कूल जाएगा तो वो स्कूल से लिंक वगैरह सब आ जाते हैं, तो एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने उसको बेचारे को यहाँ पे रजिस्टर किया, बट यहाँ पे हमने लेट हो गए थे, बिकॉज यहाँ पे कनाडा में जो स्कूल रजिस्ट्रेशन होते हैं ये ईयर स्टार्टिंग में हो जाते हैं, लाइक जनवरी फरवरी ये सब चलते हैं, लाइक अप्रैल तक इन लोगों का एंड रहता है। तो और हम लोगों ने तो इसको जुलाई में, जैसे इसका सेशन खत्म हुआ जुलाई में, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, बिकॉज एड्रेस प्रूफ ये सब भी देना होता है। तो उस चक्कर में तो बेचारा लेट हो गया रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे उसको सीट मिली नहीं। तो अभी करंटली तो ये इनके ओवरफ्लो डेजिग्नेटेड स्कूल जा रहा है, बट वो लोग, उनका मेल आया था लाइक कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर हमारे पास सीट्स अवेलेबल होती हैं, सो वी कैन कॉन्टैक्ट यू एनी टाइम टू स्विच टू दिस, लाइक जिसमें हमने रजिस्टर किया था उसमें। तो अभी तो खैर बट वेटिंग तो है, सो होपफुली हो जाए क्लियर, क्योंकि ये वाला ऑब्वियसली उस वाले से पास में है जहाँ से वो जाता है, जहाँ पे वो भी जा रहा है। सो फिलहाल अभी हमने उसकी बस भी करा दी है ट्रांसपोर्टेशन, तो ही इज़ गोइंग बाय बस नाउ। सो वो भी एक नया एक्सपीरियंस है उसके लिए, एंड ठीक है, अब जो भी है उसको मैं पॉजिटिव वे में भी अब दुखी होने से तो कोई मतलब नहीं है, अब पॉजिटिव ही लो, बिकॉज ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बस से जा रहा है, इससे पहले उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था बस से जाने का। तो ऑब्वियसली इस स्कूल में तो आ ही जाएगा पास वाले में, बट अभी जितने भी टाइम वो बस से जा रहा है तो वो भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ा वो घबरा गया था जब जा रहा था। जब वापस आया तो उसने मुझे बोला भी कि, और एकदम आके ना चिपक गया हम लोगों से, और बोला कि मुझे लग रहा था ये अंकल मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, और मैं वापस अपने मम्मा पापा से मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। एंड उसने जो ये बोला, और मेरे तो टप 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 आंसू गिरने लग गए। मतलब मैं बोलते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है शिट। सो मॉम्स एंड उनके इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते। एनीवेज, सो ही इज़ गोइंग बाय बस, एंड यहाँ कैलगरी में स्कूल लाइक मंडे टू थर्सडे फुल डे चलता है,
8 से, लाइक नॉर्मली यहाँ पे मोस्टली स्कूल 8 से 2:30 हैं, लाइक 8 मॉर्निंग 8 से इवनिंग 2:30 एंड आफ्टरनून 2:30, और फ्राइडे को यहाँ पे हाफ डे होता है तो 8 से 12। बट एडमिंटन में ऐसा नहीं था। एडमिंटन में लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे फुल डे, इवन दो फ्राइडे भी फुल डे होता था, और थर्सडे को लाइक इट्स नॉट कम्प्लीटली हाफ डे, 1-1.5 घंटा 1-1.25 घंटा पहले छुट्टी हो जाती थी बस। ये है वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा, और वहाँ पे 8:30 बजे से टाइमिंग्स हैं स्कूल के मोस्टली, तो 8:30 से 3:30 ऐसा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा है कि कैलगरी में स्कूल आवर्स लाइक हाफ एन आवर कम है और हाफ डे भी होता है, तो अच्छा ये प्लस पॉइंट है। अच्छा ये चलो। और बस, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने यहाँ पे शायद $230 और $250 कुछ हमने ईयरली पे किया है। तो बट हाँ, पर विद इन अ कम्युनिटी अगर बच्चा शटल ले रहा है, लाइक स्कूल ट्रांसपोर्टेशन ले रहा है, जो इनके वॉक जोन कहलाते हैं, वॉक जोन आई गेस विद इन स्कूल से 2.5 किलोमीटर्स की रेंज में जो आता है, जो हाउस आते हैं, वो वॉक जोन में कहलाते हैं। अगर आप वॉक जोन में भी ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हो तो शायद जस्ट डबल है चार्जेस बस के, बाकी नॉर्मली तो ये 230-250 ऐसा है हमने पे किया है। सो वॉक जोन में तो जब आ जाएगा, बिकॉज हम तो बिल्कुल ही वॉक जोन में है, तो ऑब्वियसली तब तो हम लोग शायद ही लेंगे बस, बिकॉज बिल्कुल ही पास में, लाइक नॉर्मल विंटर स्नो टाइम पे तो नहीं, नॉर्मल उसमें तो मैं वाई वॉक भी आरुष को लेके छोड़ सकती हूँ। सो वो तो सब बात की बात है। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं रोज़ भगवान से, बस एक ही प्रार्थना कर रही हूँ आजकल की, प्लीज़ भगवान जी जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए उसका, बिकॉज फिर सुबह अभी जैसे बेचारा सुबह 6:15 बजे उठाती हूँ तो उसमें आधा घंटा और उसको सोने को मिल जाएगा। तो यही सब बातें हैं। सो एनीवेज दैट्स इट। चलिए तो फिर आज का ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो। सो इसी नोट पे चलिए तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल के मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।